क्या हुआ? सर नेट चला गया था. Okay. Now see Sahil. Okay, we'll start with data redundancy, right? So it will save the storage space. Okay, and wastage will be eliminated by this. Data inconsistency क्या है? If file is updated, then all file containing similar information must be updated. Okay, else it would result in inconsistency of data, right? So we can make just like you have to, in cricket we say you have to make consistent scoring, right? So consistency is very important. If one file is updated, then all file containing similar information must be updated, right? Data integration, very important. Okay, data is independent. Accessing information out of multiple files becomes one very difficult. So we will what we will do, we will integrate the data. Okay, right? So this, so see what we can do. I mean, in traditional file processing system, we have just like why we update accounting softwares, because these are traditional and these are suffering from data redundancy, inconsistency, and lack of data integration. To provide such things will make a concept that is database management system, right? What is this DBMS? It's a collection of programs that enables user to create, maintain, and use database, right? It's enable creation of repository of data that define once and then accessed by different user at per their requirement. Okay. See, जैसे मेरी requirement अलग है, आपकी अलग है, तो DBMS क्या करेगा? As per requirement, we can access the data, right? Okay. Repository है, मतलब एक तरह का डिपॉजिट है, जैसे encyclopedia है, right? Okay, so this is the diagram. Application software, DBMS software, store database and its definition, right? Got it? So various operations need to be performed on database as follow. Database में क्या-क्या हमारे पास operations होते हैं? DBMS is DBMS, database management system. एक relational DBMS भी होता है. Okay? अभी हम ये concept देख लेते हैं DBMS का, right? इसमें ये these 6 points are very important. First is defining the database. You have to specify data types of data. Okay, ये integer है मेरे पास, numeric में मैंने save करना है कि float में करना है. Okay, so it will store in database and so and also any constraint on that data. Okay, then populating the database. Okay, storing the data on some storage medium that is controlled by DBMS. जो भी मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ किसी भी स्टोरेज मीडियम से, उसका कंट्रोल मेरे DBMS के पास होगा. मैनिपुलेटिंग द डेटा. मैनिपुलेशंस क्या होती हैं? ये हम क्वेरी से करते हैं. मुझे डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, राइट? लेट्स सपोज किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट नया आया, तो मैं क्या करूंगा? आई विल इंसर्ट हिज डेटा. एक स्टूडेंट चला गया, मैं डिलीट करूंगा. किसी ने की ट्रांसफर हुई है एक सिटी से दूसरे में, या हाउस नंबर चेंज हुआ, तो मैं क्या करूंगा? उसका डेटाबेस अपडेट करूंगा. इस चीज को क्या कहते हैं? मैनिपुलेटिंग. ओके, वेरियस मॉडिफिकेशन, रिट्रीविंग डेटा, क्वेरिंग द डेटा. क्वेरी से हम करते हैं, राइट? और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं एट द एंड, राइट? जैसे मेरे पास वो कॉन्सेप्ट है ना, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. आउटपुट में क्या है? रिपोर्ट जनरेशन, राइट? आपका आउटपुट क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड्स एट द एंड. Means they will judge your academic performance according to your grades, marks, projects, right? So next is sharing the database. Allow multiple user to access the database at same time, right? Multiple user access करते हैं ना डेटा को. जैसे रेलवे रिजर्वेशन टिकट है, वो अकेला एक बंदा तो नहीं बुक करा रहा होता,
कई बार मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, 1000 बंदा इकट्ठा बुकिंग करवा देता। ओके, सो मल्टीपल यूजर को एक्सेस भी देना मैंने डेटा का, राइट। कंपनी की स्वराज की वेबसाइट है, वो 10 जाने भी तो इकट्ठे एक्सेस कर सकते हैं, शेयरिंग, राइट। एंड प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस from unauthorized users and hardware failures. This is also the duty of this database management system. Okay, सब एग्जांपल Oracle है, DM MySQL है, जो आप लोगों को है, आगे हम जाके SQL ही स्टडी करेंगे, राइट। गॉट इट। अब इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है DBMS के, right? Describing the nature of database system. He has given one example. What is metadata? Metadata क्या होता है? The text description of data is data in data. Okay, metadata is stored in a database, catalog, or data dictionary, right? It will explain about data, explaining about its data, right? Okay, right. And insulation between program and data. Since the definition of data is stored separately in DBMS, any change in structure of data would be done and catalog, and hence program which access this data need to be modified. This property is called program data independence, right? So we will provide this insulation between program and data, right? Okay. Sharing of data, multi-user environment. DBMS apply various concurrency controls. Okay, उस concurrency keys होती हैं, वो हम apply करते हैं sharing में, right? Got it? So ये उसके कुछ characteristic हैं, right? Now types of DBMS. Type of users of DBMS, end users हैं, database administrators हैं, application programmers हैं, system analysts हैं, ये सारे users हैं DBMS system के, right? Just I mean keep this thing in mind. DBA क्या होता है? Database administrator. Okay, जो data को administrator करता है, वैसे इसका एक course होता है DBA का, right? Application programmers, जैसे मेरे जैसे application programmers हो गए, जो applications write करते हैं, right? हाई लेवल लैंग्वेज में। वैसे अगर आप ओरेकल का स्ट्रक्चर देखो तो वो सारा जावा बेस्ड ही है, जावा यूज होती है उसमें, राइट। सो एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज वही आ गई, हमने जो स्टडी किया था, वी हैव टू रिमूव इनकंसिस्टेंसी माय डाटा, वी हैव टू रिमूव रिडंडेंसीज, राइट। उसकी स्टोरेज स्पेस का भी हमने सेवेज रखना है, वी हैव टू रिमूव इनकंसिस्टेंसी। ओके, एंड ये जो 3 चीजें हमने पहले स्टडी की थी, वी हैव टू मेक डेटा इंटीग्रेशन, राइट, व्हिच इज मिसिंग इन ट्रेडिशनल सिस्टम, राइट। सो ये सारे हमारे पास एडवांटेज है। ओके, वी विल इंप्रूव रिडक्शन इन रिडंडेंसी, राइट। सेंट्रल रिपोजिटरी होगा, सारा डाटा एक ही जगह स्टोर होगा, आप कभी भी वहां से रिट्रीव कर सकते हो, ये नहीं कि अलग अलग फाइल्स में मैं सेव कर रहा हूँ डेटा को, राइट। ओके, कंसिस्टेंसी रहेगी डेटा की, यस। और डेटा को मैंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है ताकि अनऑथोराइज यूजर इसे ना एक्सेस कर सके। जस्ट लाइक हम फेसबुक में, अपनी सोशल मीडियाज में भी सिक्योरिटी नहीं आजकल फीचर आता, राइट, अनलॉक करते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो वैसे ही कंपनीज भी अपना, कंपनीज का तो इतना मीन्स इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट। बैंक्स हैं, बैंक्स का कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, क्लाइंट्स की लिस्ट है उनके पास, सब कुछ है, राइट। तो वो सिक्योर करते हैं अपने डेटा बेस को, सो दैट अनऑथोराइज्ड यूजर कांट एक्सेस इट, अदरवाइज दे विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कंपनी, राइट। ओके, एंड यूजर फ्रेंडली हो मींस इट बिकम इजी, मॉडिफाई, डिलीट, ओके, इजी हो, क्वेरी से सारा काम हो जाता है, राइट।
तो ये सारी लिमिटेशन क्या है, हाई कॉस्ट इज सो हाई। आप प्रोफेशनल्स रखोगे, प्रोफेशनल मिलेंगे ही नहीं आपको मार्केट में। ओके, security and recovery overhead, unauthorized access to a database can lead threat. Okay, and means अगर मेरा डेटा ही कोई उड़ा के ले गया है तो मतलब मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और इसकी कॉस्टिंग बड़ी हाई पड़ती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है, एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो, राइट। अब यहाँ से हमारा रिलेशनल डेटाबेस शुरू होता है, राइट। है सुमिता अरोड़ा में है ये चीजें? यस, सर इतने डिटेल में नहीं है पर हैं थोड़ी थोड़ी। है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, कोई नहीं, हाँ मैं जी सर डिटेल। नोट्स भेजूंगा, ये स्पेशली डेटाबेस के ही है। अब रिलेशनल क्या होता है, एक तो देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। ओके, रिलेशनल क्या है, एक मेरे पास वैसे डेटा, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल डेटा है जिसमें इनकंसिस्टेंसी होती है, रिड्यूडेंसीज होती हैं, डेटा इंटीग्रेशन नहीं होता। फिर हमने डीबीएमएस बनाया, अब हमने रिलेशनल डेटाबेस बनाया। ये जो आरडीबीएमएस है ना, इट वाज डेवलप्ड बाय कॉड, ईएफ कॉड इन 1970, राइट। इसी को ओरेकल कहते हैं हम लोग, ओरेकल आज की डेट में जो आपने सुना होगा, एमएस सीक्वल, राइट। ओके, ये सारे डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। ओके, इसमें मैं क्या कहता हूँ, रिलेशन डेटाबेस और उसमें क्या फर्क है। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा एज कलेक्शन ऑफ रिलेशन। हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं इसमें, जैसे एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, ओके, एक टेबल है सैलरी, और सो वी हैव टू डिफाइन रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड सैलरी, राइट। एक मेरे पास टेबल हो गया डिपार्टमेंट, सो वी हैव टू डिफाइन रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, राइट। तो ये सारा काम होता है, इसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, राइट। कंसिडर एम्प्लॉय टेबल and each row in table represent fact about a particular employee, right. So the column names, name, id, gender, salary, date of birth, ये सारे जो columns मैंने आपको बताया था, ये क्या है, specify how to interpret data in each row, right. Okay, अब इस relational model में हम लोग क्या कहेंगे, we will use certain terminologies, राइट। ये जितने मेरे कॉलम है ना, जैसे नेम है नेहा मेहता, पारस बंसल, हिमानी वर्मा, ये क्या है, इसे मैं क्या कहता हूँ, कॉलम को एट्रीब्यूट। मैं कल आपको बता रहा था ना, ये चीजें हमने याद रखनी है डेटाबेस की, आरटीबीएमएस की ये खूबियां हैं। रो जो है, ये सारी रो जो है, एक ये वाली, ये देख, ये क्या है, मेरा एक टप्पल है। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ टप्पल, सो यू हैव टू राइट अ रो इज कॉल्ड टप्पल, राइट। ये मेरी रो है, ये सारी नेहा मेहता 1121, ओके, दिस इज अ टप्पल। ये जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं। नेम मेरा एक कॉलम है, ओके, कॉलम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट्स हैं, नेहा मित्तल, पारस बंसल, हिमानी वर्मा, राइट। ओके, यस, मींस आरडीबीएमएस में हम ये नहीं कहते कि ये रो है, हम कहते हैं ये एक टप्पल है। तो इसमें कितने टप्पल्स हैं, इस एम्प्लॉय टेबल में मुझे टप्पल्स बता, कितने टप्पल्स हैं? 6। नहीं सॉरी 1 2 3 टपल्स है यार, 1 2 3, राइट। रो को ही टपल कहेंगे ना, कितनी रोज हैं। अच्छा, इसमें हाँ एट्रीब्यूट जी कितने सर। हैं, एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, कितने हुए, 5 एट्रीब्यूट हुए, ठीक है। 5 ही हुए। हाँ, 5 कॉलम है, तो मेरे पास एट्रीब्यूट्स कितने हुए, 5 हुए, ठीक है। ये चीजें वो पूछता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, मैं भेजूंगा आपको असाइनमेंट, राइट। अब रिलेशन में और चीजें हम लोग स्टडी करते हैं यार। ए टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन, हम टेबल नहीं कहते यार डीबीएमएस में, वी विल कॉल इट एज अ रिलेशन, राइट। डीबीएमएस में हम क्या कहते थे, टेबल है, उसकी रोज है, कॉलम है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रिलेशन है, राइट। द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम
is called domain, the data type. ठीक है, मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेम। नेम क्या है, मेरी एक डोमेन है। एम्प्लॉय आईडी क्या है, डोमेन है। जेंडर क्या है, डोमेन है, राइट। इसकी जो डेटा टाइप होगी ना, जैसे ये नेम की डेटा टाइप क्या है, करेक्टर, वो मेरी एक डोमेन कहलाती है, राइट। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि इस टेबल की डिग्री कितनी है। डिग्री क्या होती है रिलेशन में, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एक एक नंबर में। डिग्री ऑफ डिग्री एंड कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है, एट्रीब्यूट क्या है मेरे पास, कॉलम है, ओके। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कैलकुलेट कर लो, कॉलम कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5, डिग्री क्या होगी, 5, राइट। कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज इन एन रिलेशन, यस। कार्डिनलिटी क्या है इस टेबल की साहिब, यस सर। कार्डिनलिटी कितनी, 3, क्योंकि 3 रोज है मेरे पास, 1 2 एंड 3। नेहा मित्तल पारस बंसल हिमानी वर्मा, 3 ही रोज है ना, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी आर इज इक्वल टू 3, राइट। डिग्री, डिग्री आपने एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने हैं, एट्रीब्यूट मींस कॉलम, तो इसकी डिग्री क्या है, 5, राइट। ये यस सर। यूजुअली या ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कुछ नहीं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कैलकुलेट रो और कॉलम ही करने हैं, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन ठीक। है, रिलेशनल स्कीमा इज डोनेटेड एज आर A1 A2 A3 where R is the relation name and A is the list of attribute, okay। R relation है और ये सारे एट्रीब्यूट हैं, दिस इज A1, नेम, नेम वाला कॉलम A1 है, एम्प्लॉय आईडी क्या है मेरे पास A2, जेंडर क्या है A3, इसे क्या कहते हैं, रिलेशनल स्कीमा, राइट। रिलेशनल स्टेट is a set of tuples in a relation at a point in time. A relation state is denoted by RR, is a set of n tuples, इसमें tuples आ जाते हैं स्टेट में। टपल का मतलब क्या है मेरे पास, रो, राइट, राइट, यस सर। या। सो ये कह रहा है कि एम्प्लॉय टेबल इज अ रिलेशन, देयर आर 3 टपल्स इन एम्प्लॉय रिलेशन, ओके। 3 ही टपल है, रो, टपल मींस रो, राइट। जो हमने किया, नेम, एम्प्लॉय, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ओके। द डोमेन इज set to atomic values, the domain database attribute is set of all possible value attribute में contain, right, okay। इसकी डोमेन क्या थी, डेटा टाइप कॉलम्स की, उस चीज को हम डोमेन कहते हैं। नेम क्या है मेरे पास, करेक्टर डेटा टाइप। एम्प्लॉय आईडी क्या है, फॉर डिजिट नंबर, राइट। जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, ओके। डोमेन, डोमेन का मतलब समझो ना, बस आपने मूल लिख देना, ओके। द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम की डेटा टाइप की वैल्यू, राइट। जेंडर की क्या डोमेन है, मेल और फीमेल, राइट। द डिग्री क्या है मेरे पास, 5 हमने निकाली ना, डिग्री 5, डिग्री क्या होती है, यस, डिग्री नंबर यस ऑफ सर। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कॉलम गिन लेने, 5 कॉलम है तो 5 डिग्री होगी। कार्डिनलिटी क्या है, टप्पल कितने हैं, टप्पल मींस कितनी रो है, 3 रोज है, तो ये उसकी कार्डिनलिटी होगी। ये आगे उसने रिलेशन स्कीमा ने निकाला है कि these are the relation schema, name, employee ID, gender, right। ये वाला रिलेशनल स्कीमा है ना, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, राइट, गॉट इट। यस सर। वही वही चीज है, बस वो थोड़ा घुमा के ये टर्मिनोलॉजीज याद कर लेना, ओके। एंड आफ्टर दिस, यहाँ पे हमने रिलेशन स्टेट डिफाइन की है, राइट। नेहा मेहता, क्या स्टेट है,
राइट। इसकी क्या आईडी, नेम क्या है, नेहा मेहता, एम्प्लॉय आईडी क्या है, फीमेल, सैलरी इज दिस, डेट ऑफ बर्थ इज दिस, राइट। गॉट इट। सो सम मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशन, कुछ और फीचर और पढ़ते हैं इसके, राइट। अब द ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट इज आल्सो अनइम्पॉर्टेंट। ओके, नो टू टपल्स ऑफ रिलेशन शुड आइडेंटिकल। टपल जो भी है ना, दो इक्वल, मतलब आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, राइट। Given any pair of two tuples, value in at least one column must be different, right? जैसे अब जब हम इस पे की कंस्ट्रेंट लगाएंगे, तो जैसे मान लो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, वो कहता है कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए हर एक रो की। आगे हम स्टडी करेंगे इन कंस्ट्रेंट्स को, राइट। ओके, समझ आ रहा है? हेलो। द हाँ जी सर। वैल्यू जो है ईच टपल की, वो इनडिविजिबल होनी चाहिए, दैट इज नॉट डिविजिबल, राइट। The value of an attribute in a tuple is not known or not applicable, not available. A special value called null is used to represent. अगर मान लो इस कॉलम में ये जेंडर, सैलरी में ये कॉलम खाली है, तो मैं क्या कहूंगा कि इस टपल की वैल्यू क्या है, नल वैल्यू है, राइट। जैसे ये देखो, मैं नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ओके, ये मेरी एक रो है, नेम, एड्रेस, सैलरी, राइट। ये मेरा क्या है, एक रिलेशन नेम, मान लो XYZ है, यहाँ तो उसका एड्रेस मिसिंग है और सैलरी उसकी 20 कितनी है, तो इसका मतलब ये क्या है, इस चीज को मैं क्या कहूँगा, नल वैल्यू, राइट, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है उस टेबल में, राइट। तो राइट, सो कल इसके हम मॉडल स्टडी करें, आज इतना ही कर लो आप। हेलो। यस सर। यस साहिब। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही कर लो।